11th क्लास में आज हम सबसे ज़्यादा क्रूशल टॉपिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, सपोज एक फंक्शन है y जो x डिपेंडेंट है, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। कैसे? y कैन बी एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11। सपोज x is independent variable and y is dependent variable. Y depends on x. That's why we call y is a function of x. So I changes the value x by x plus delta x. Obviously, when I change the value of x by some small amount delta x, then the value of y also changes from y to delta y. Y to y plus delta y when I change x to x plus delta x. Suppose if I substitute the value of x equal to 2, then the function is 2 cube plus 10 2 square plus 10 into 2 plus 11. What is delta x? Delta x means very small change. Suppose I put now yx 2.1 2.01 plus 10 2.01 plus 10 2.1 2.01 plus 11. So now this will not y, it will be much, y dash must be greater than y, but y dash is very less greater than y, because this delta x is very small. So now I find the average rate of change in y with respect to delta x. This is called average rate in change in y with respect to delta change in base variable delta x. If I take delta x to very small, if limit delta x tends to small, then delta y by delta x is called differential coefficient of x. It is called differential coefficient of x. Now, in your syllabus, we have the most basic formula is y is equal to x की power n. So, in calculus you will study the elaborated, but now I am using the direct result. The differentiation of y with respect to x is of the formula d by dx, x की power n is n x की power n minus 1. So its use, what is this use? If suppose I have to differentiate x की power 3, then I will put n is equal to 3. Now the use is this formula 3, n की जगह मैंने क्या रखा 3, x की power 3 minus 1, that is 3x square. If I have to differentiate single term x, means if it is single x means x की power 1, then its differentiation is 1 x की power 1 minus 1, that is 1 x की power 0, that is equal to 1. If I differentiate constant term d by dx of 100, which is equivalent of d by dx 100 x की power 0, since x की power 0, so 0 into x की power 0 minus 1, again it's 0. So constant term have 0 differentiation. I take y is x की power cube plus 10x square plus 10x plus 1. If I differentiate this equation with respect to x, then dy by dx of x cube plus 10x square plus 10x plus 1. So now x cube differentiation है by this formula, x n की जगह 3 होगा, तो 3, इसको हम लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है dy by dx x cube plus 10 dy by dx x square
प्लस 10, क्योंकि कांस्टेंट है इनको हम बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, dy by dx of x plus dy by dx of 1. dy by dx is a constant term, that 1 will be 0. It will be 0. Now differentiation of x cube is 3x square. Differentiation of x square is 2x, and for x is 1 plus 0. So this is the differentiation of x cube plus 10x square plus 10x plus 1. I hope that you will get through this concept. Now we will utilize this concept. Where we will utilize this concept? If displacement is given and you have to find velocity, then you will take ds by dt. If velocity is given and you have to find acceleration, then we use dv by dt. So now when displacement is given, you find velocity, then you will have to differentiate the displacement, and if it is velocity is given in terms of time function, suppose t cube plus 10t square and so on. इसी तरह से velocity का 10t plus 11 दे रखा है, then आपको you have to find acceleration, then you have to find that its differentiation. So this is the use of differentiation. Now we will come to integration. The reverse process of differentiation is called integration. Suppose if y is fx, then dy by dx is called f dot f dash x. This is differentiation. But if I call f dash x dx, that is fx, is called integration. इंटीग्रेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और ये फंक्शन इस तरह का है, वेरिएबल फंक्शन है, और सपोज मेरे को x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जो y का इफेक्ट है, या मैं ये कहूं कि अगर ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं इस एरिया को इंटीग्रेशन की हेल्प से डिफाइन करता हूं. इंटीग्रेशन ये कहता है कि आप इस एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो और इस स्ट्रिप्स की विड्थ आपने dx की और इसकी वैल्यू है y. क्योंकि y खुद एक वेरिएबल है, मान लो y x स्क्वायर प्लस 10x है, प्लस 10 है, तो ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. फिर मान लो ये एक्स स्क्वायर ही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूं कि मैं इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लूं, और ये मेरी लोअर लिमिट है और ये मेरी अपर लिमिट है, और मैं इन सारी स्ट्रिप्स को डिवाइड करते करते इन सबको ऐड कर लूं. यानी मैं क्या करूं, समेशन करूं इन सबको y dx, और ये समेशन कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होता है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक. और मेरा फंक्शन है मान लो x स्क्वायर, तो मैं यहां पर y की जगह लगा दूंगा x स्क्वायर. तो अब मेरे पास अब फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए. डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन को कहते हैं हम y dx और डिफरेंशिएशन को कहते हैं dy by dx. अब अगर मान लो x की पावर n के फंक्शन में dy by dx यानी डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस 1 आता था, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा. डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 आता था, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट का x आएगा. इस 1 का इंटीग्रेशन जहां 0 आता था, डिफरेंशिएशन 0 आता था, वहां इंटीग्रेशन क्या होगा, x आएगा. और मेनली हम ये दो फॉर्मूलेज यूज करेंगे इंटीग्रेशन में. अब इंटीग्रेशन का बेनिफिट्स क्या है? इंटीग्रेशन का बेनिफिट्स ये है
कि अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3t² प्लस 2t और आपसे वो कहता है कि वेलोसिटी फाइंड करो, तब आप डिफरेंशिएशन नहीं यूज करके बल्कि इंटीग्रेशन यूज करोगे। एक ही जगह लिखोगे dv/dt दैट इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t, dv इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t dt, एंड अब हम इसमें dv इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t dt करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल बता रहा हूं। ये मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल था। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू समथिंग लिमिट तक। अगर मान लो मैंने शुरू में जब मेरा टाइम 0 था तब वेलोसिटी मेरी 0 थी, और जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो मान लीजिए वेलोसिटी v हो गई। तो अब देखिए यहां पर dx का इंटीग्रेशन x आया था, यहां पर dv का इंटीग्रेशन v आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा मैं 0 to v। इसी तरह से इसमें से 3 कांस्टेंट है, 3 को मैं बाहर ले लूंगा, t² का इंटीग्रेशन करूंगा और लिमिट 0 से 2 होगी। इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, प्लस 2 बाहर ले लिया t dt 0 से 2। तो मेरे पास ये जो आएगा, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस 0 3, ये आएगा मेरे पास t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी t की पावर 3 अपॉन 3 0 से 2 प्लस 2, यहाँ पर t की पावर 1 है, सिंगल t इसका मतलब t की पावर 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी t² बाई 2 0 से 2। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो मैंने 0 से 2 ये लगा रहा हूं मैं, दोनों में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब इसका क्या यूज है, यहाँ देखिए, यहाँ कर लेते हैं। इसका यूज ये है कि मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, यहाँ पे सिंगल v था तो v माइनस, यानी ये वैल्यू ऊपर रखी, उस वेरिएबल की जगह पहले ऊपर वाली वैल्यू रखी, माइनस नीचे वाली वैल्यू रखी। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, t³/3 है, तो मैं क्या करूंगा, इस t³ की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे 2³ माइनस नीचे वाली वैल्यू रखूंगा, तो 3 बाहर, इस 3 से 3 कट भी जाएगा तो केवल बचेगा, इस 2 से 2 कट भी जाएगा, तो मेरे पास बचेगा t³। तो t³ 0 से 2 प्लस t² 0 से 2, तो अब मेरे पास आया 2³ माइनस 0 क्यूब प्लस 2² माइनस 0² that is equal to 8 plus 4. So this is called definite integral. In many questions you will solve with the help of this definite integral. हाँ, अब जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक्सेलरेशन दिया है तो आपने वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकाली, वेलोसिटी दी होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करके निकालोगे। जबकि उल्टा प्रोसेस होता था, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होता था तो आप क्या करते थे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके निकालते थे, और वेलोसिटी दी होती थी तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस हैं। I believe this video will help you a lot in calculating integration and differentiation. Thank you.